آج ہم درجہ حرارت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق طبعی جغرافیہ سے ہے۔ تو آئیے بچوں دیکھتے ہیں درجہ حرارت۔ آئیے عمل کر کے دیکھیے، یہاں پہ ایک عمل کرنا ہے، مشاہدہ کرنا ہے۔ ٹارچ کی روشنی کی مدد سے سیدھے اور تیرچے حصے پر گھرا علاقہ ہے۔ دو اشکال دیے گئے الف اور بے۔ یہ دو تختوں کے اوپر ٹارچ کی روشنی ڈالنی ہے اور اس کا مشاہدہ کرنا ہے۔ ایک ٹارچ لیجئے، اسے کسی مقام پر ساکت رکھیے، یعنی وہ ہلنی نہیں چاہیے۔ ٹارچ کی روشنی کا احاطہ کر سکے ایسے دو بڑے کاغذ لیجئے، انہیں مستہ دفتی ٹکڑوں پر چسپاں کیجئے۔ اب کاغذ کو ٹارچ کی جانب اس طرح رکھیے کہ 90 درجے کا زاویہ قائمہ بن جائے، جیسے شکل نمبر 5.1 یعنی الف میں بتایا گیا ہے۔ ٹارچ کی روشنی کاغذ پر ڈالیں۔ روشنی سے گھرے کاغذ کے حصے کو پینسل سے نشان زد کر دیے۔ جہاں پہ روشنی گر رہی ہے اس حصے کو پینسل سے نشان زدہ بنانا ہے، اس کاغذ پر الف لکھ دیں۔ اسی طرح اب دوسرا کاغذ لیجئے، اسے اس طرح ترچا پکڑے کہ ٹارچ سے 120 درجے کا زاویہ بنے، جیسے 5.1 میں شکل نمبر بے۔ اس ترچے کاغذ پر ٹارچ کی روشنی ڈالیے اور روشنی سے گھرے ہوئے حصے کو پینسل کی مدد سے نشان زد کیجیے۔ یہ دونوں بھی آپ کو عملی تجربے کے طور پر کرنا ہے۔ اس کاغذ پر بے لکھیے۔ اب دونوں کاغذات کا مشاہدہ کیجیے۔ اب یہ بتائیے کہ کس کاغذ پر ٹارچ کی روشنی نے زیادہ جگہ گھیری ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے بے۔ کس کاغذ پر ٹارچ کی روشنی نے کم جگہ گھیری ہے؟ الف ہم کو نظر آ رہا ہے شکل میں۔ اب ٹارچ اور کاغذ کے زاویوں کو تبدیل کر کے دیکھیے کہ روشنی سے گھرے ہوئے حصے میں کیا تبدیلی ہوئی۔ اب اس میں کچھ چینجز کرنا ہے، جسے ٹارچ اور کاغذ کے زاویوں کو تبدیل کرنا ہے۔ جسے پہلا سیدھا تھا، اس کے بعد 120 درجے تھا دوسری شکل کا۔ روشنی سے گھری ہوئی جگہ اور کاغذ کے زاویے ان دونوں میں کیا تعلق ہوگا؟ جیسے جیسے زاویہ بڑھتے جائیں گا تو روشنی کیا ہو جائیں گی؟ زیادہ جگہ گھیرتی جائیں گی۔ اب جغرافیہ وضاحت کے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورج کی شعاعیں زمین پر خط مستقیم میں آتے ہیں، یعنی بالکل سیدھی آتی ہیں، لیکن زمین گول ہونے کی وجہ سے یہ شعاعیں سطح زمین پر ہر جگہ عمودی نہیں پڑتی۔ بعض جگہ یہ شعاعیں عمودی پڑتی ہے تو بعض جگہ تیرچی پڑتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ زمین کی شکل کیا ہے؟ گول ہے، جس کی وجہ سے کچھ شعاعیں عمودی پڑتی ہیں تو کچھ شعاعیں ترچھی پڑتی ہیں۔ عمودی شعاعیں کم جگہ گھیرتی ہیں، جسے 5.1 الف میں دیکھیے۔ کم گری ہوئی جگہ میں تیز روشنی اور زیادہ گرمی حاصل ہوتی ہے، اس لیے یہاں کی سطح زمین زیادہ گرم ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اس سے لگی ہوا بھی خوب گرم ہو جاتی ہے۔ ترچھی شعاعیں زیادہ جگہ گھیرتی ہیں، جسے شکل نمبر 5.1 میں بتایا گیا تھا۔ زیادہ جگہ گھیری ہوئی میں روشنی کی شدت اور گرمی کم حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس علاقے کی سطح زمین بھی کم گرم ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اس سے لگی ہوا بھی کم گرم ہوتی ہے۔ یعنی جہاں پہ زیادہ سورج کی روشنی ہوتی ہے وہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے، اور زیادہ کم وہاں پہ سورج کی روشنی ہوتی ہے جہاں پہ وہاں پہ سورج کی روشنی کم ہوتی ہے۔ یہ بات ہم کو اس سے تجربے کی مدد سے سمجھ میں آ چکی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں زمین کی کروی شکل اور سورج کی شعاعوں کی تقسیم۔ جسے دیکھیے یہاں پہ الف بے جیم دیا گیا ہے۔ سورج کی شعاعیں خط استوا پر بالکل عمودی پڑتی ہیں، یعنی وہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ بالکل اسی طرح سے بے پر ترچھی شعاعیں، یعنی وہاں پہ گرمی کم ہے، اور جیم پر بالکل ترچھی شعاعیں ہیں، یعنی وہاں پہ بہت ہی ٹھنڈا موسم ہے۔ اب اس کو جغرافیہ وضاحت کے مطابق ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زمین پر پہنچنے والی سورج کی شعاعیں سیدھی اور ایک دوسرے کے متوازی ہوتے ہیں، لیکن زمین کی گول شکل اس کی خمیدگی کی وجہ سے سورج کی شعاعیں زمین پر کم یا زیادہ جگہ گھیرتی ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ شعاعوں کی کم یا زیادہ جگہ گھیرنے کی وجہ سے سورج سے زمین کو ملنے والے حرارت کی تقسیم غیر مساوی ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خط استوا
उसे कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी तक दर्जा हरारत की तकसीम में मसावात नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि सूरज की शुआएं क्या होती है, जहाँ पे उमूदी पड़ती है यानी डायरेक्ट पड़ती है, खद मुस्तकीम नहीं पड़ती है, सीधी पड़ती है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, और जहाँ पे कम पड़ती है वहाँ पे गर्मी बिल्कुल कम होती है। दर्जा हरारत की तकसीम के मुताबिक खत इस्तवा से कुतबैन तक हारा, मुतदिला और बारदा मुंतके या हरारती पट्टे बनते हैं। जिसे शक्ल नंबर 2.4 में बताया गया है, और शक्ल नंबर 5.3 की मदद से भी आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, शुमाली कुतुब 90 दर्जे, मुंतके बारदा का इलाका, मुंतके मुतदिला यानी 66 दर्जे 30 मिनट से लेकर 23 दर्जे 30 मिनट तक का इलाका। अर्जुल बलद जैसे अहम आमिल के अलावा ज़मीन पर हरारत की गैर मसावी तकसीम के लिए ज़मीन के दीगर अवामिल भी जिम्मेदार है, पर इन अवामिल का असर इलाकाई सतह तक महदूद होता है। ये अवामिल दर्जेले समंदरी नज़दीकी, दरोन बहर आज़म महल वकू, सतह समंदर से बुलंदी और इलाके की कुदरती साख, इन अवामिल की वजह से इलाकाई आबो हवा में तनू पाया जाता है। इनके अलावा अबर आलूदगी, हवा, जंगलात का घनापन, शहरियाना और सनतियाना सनतकारी वगैरह का असर भी मकामी आबो हवा पर होता है। आइए इसके बाद पानी का गर्म और ठंडा होना, इसका हम मुशाहदा करते हैं। एकसा जसामत के 2 बर्तन पानी की एक जैसी मिकदार से भर ले। एक बर्तन घर के अंदर रखिए, दूसरे बर्तन को तुले आफ्ताब के वक्त से ही घर के बाहर रख दीजिए। इस बात का ख्याल रहे कि बाहर वाले बर्तन पर सूरज की शुआएं मुतवातिर पड़ती रहे, यानी मुसलसिल उसके ऊपर शुआएं पड़ती रहे, इस बात का हमको ख्याल रखना है। जैसे कि यहाँ पे शक्ल नंबर बे में दिखाया गया है, एक घर में रखा गया अलिफ और बे बाहर रखा गया। अब दोपहर के वक्त घर के अंदर नंगे पांव से ज़मीन के दर्जा हरारत का अंदाज़ा लगाएं। पानी में हाथ डालकर पानी के दर्जा हरारत का भी अंदाज़ा लगाइए। इसी अमल को घर के बाहर की ज़मीन और बाहर रखे हुए बर्तन के पानी पर दोहराइए। अब ज़मीन और पानी के दर्जा हरारत के मुतालिक आपके मुशाहदात बयाज में लिख लें, और यह आपको क्या करने का, मुशाहदा अपने बयाज में नोट डाउन करना है। और ये बात हमको समझ में आ चुकी है कि बाहर का पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, बाहर दर्जा हरारत ज़्यादा होती है और अंदर का पानी बिल्कुल मुतदिल रहता है। इसी अमल को घर के बाहर की ज़मीन और बाहर रखे हुए बर्तन पानी पर दोहराइए। अब ज़मीन और पानी के दर्जा हरारत के मुतालिक आपके मुशाहदात क्या करना है, लिख लेना है। पहले किया गया ज़मीन और पानी का दर्जा वाला तजुर्बा दोबारा शाम 7 बजे कीजिए। मुशाहदात बयाज में लिखिए। अब बर्तन हटाने में कोई हिरज नहीं है, तमाम दर्ज मुशाहदात पर जमात में गुफ्तगू करना है। इसे हमेशा जहन नशीन हमें रखना है। अजीज़ तलबा और तलबात ध्यान में रखें कि हमेशा लगता है कि ये बात हमें हमेशा लगता है कि सूरज की शुआओं की वजह से हवा गर्म होती है, और गर्म हवा की वजह से ज़मीन और पानी गर्म होते हैं। असल में होता कुछ यूँ है, ज़मीन और पानी सूरज की शुआओं की वजह से गर्म होते हैं। इसके बाद ज़मीन और पानी में जज्ब हुई हरारत फ़िज़ा में तहलील होती है। बिल्कुल इस वजह से ज़मीन से लगी हवा की तह ऊपर की सिमत गर्म होती चली जाती है। नतीजा यह होता है कि सतह ज़मीन से जिस कदर बुलंदी पर जाए हवा का दर्जा हरारत कम होता जाता है, यानी ज़मीन के जितने करीब रहेंगे उतनी गर्मी रहेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे गर्मी कम होती जाती है। सतह समंदर पर पाया जाने वाला दर्जा हरारत पहाड़ी इलाकों में कम होता दिखाई देता है। अब इसकी हम जुग्राफिया वजाहत देखते हैं। आपके इल्म में यह बात आई होगी कि पानी के मुकाबले में ज़मीन जल्द ठंडी हुई है। धूप में रखा हुआ पानी मामूली ठंडा ही रहा है। ज़मीन और पानी के गर्म होने और ठंडा होने के फ़र्क की वजह से ज़मीन पर हवा जल्द गर्म हो जाती है और जल्द ही ठंडी भी हो जाती है। इसकी बनिस्बत समंदरी हवा देर से गर्म होती है और देर से ठंडी होती है। नतीजा यह होता है कि साहिली इलाकों में दरोने बरआज़मी इलाकों की बनिस्बत हवा का दर्जा हरारत दिन में कम और रात में ज़्यादा रहता है। इसके बरखिलाफ साहिली इलाकों की बनिस्बत हवा दर्जा हरारत दिन में ज़्यादा और रात में कम होता है। अब हम देखने जा रहे हैं सब्ज़ खाना गैस के असरात।
फिजा में मौजूद बाज़ गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और आबी बुखारा ज़मीन से बाहर निकलने वाली हरारत को देर तक अपने अंदर जमा रखते हैं। इन गैसों की वजह से फ़िज़ा में हवा की तमाज़त बढ़ जाती है। माहिरीन मौसमियात का ख्याल है कि फ़िज़ा में इन गैसों का बढ़ता तनासुब आबो हवा की तब्दीली का बास हो रहा है। आबो हवा की ये तब्दीली सारे आलम में हो रही है, इसे ही आलमी हरारत अफजोनी कहते हैं। यानी आबो हवा की जो तब्दीली होती है वो सारे आलम में पूरी दुनिया में होती है, इसे ही क्या कहते हैं, आलमी हरारत अफजोनी कहते हैं। आलम यानी दुनिया। जिन गैसों की वजह से हरारत में इजाफा होता है उन गैसों को सब्ज खाना गैस कहते हैं। ध्यान में रखिए बच्चों। उसके बाद फिर से हमको एक मुशाहदा करना है। गर्म होते हुए पानी में प्लास्टिक के 4-5 बटन डालकर उनकी हरकत किस तरह होती है इसका मुशाहदा करना है। हरारत का बहाव और उमूदी रुई का यहाँ पे मुशाहदा करेंगे। जुग्राफिया वजाहत इस तरह से कि गर्म होने पर पानी के ज़र्रात फैलते हैं, तह का पानी गर्म होकर ऊपर आता है, इसके साथ पानी में डाले गए बटन ऊपर आते हैं और फिर तह में चले जाते हैं। आपने गौर किया होगा कि गर्म पानी में बटन बार बार ऊपर आते हैं और बार बार तह में चले जाते हैं। मतलब है कि जब पानी गर्म होता है तो उसके अंदर उमूदी रोई पैदा होती है। जिस तरह बर्तन के गर्म पानी में यह अमल होता है, उसी तरह फितरत के दिगर अवामिल मसलन समंदर में यह अमल थोड़ा अलग होता है। दर्ज हरारत में फ़र्क की वजह से समंदरों में उमूदी और उफ़की बहरे रोई तैयार होती है। यहाँ पे देखिए दुनिया में बहरे रोई जो है बताए गए हैं। गर्म रोई को यहाँ पे गुलाबी कलर से बताया गया है, पिंक कलर से, और इसी तरह से सर्द रोई को यहाँ पे नीले रंग से बताया गया है। फिर उसके बाद उफक से मुतवाज़ी ये रवी दर्जा हरारत में फ़र्क, पानी की कसाफत में इख्तिलाफ और हवा की वजह से पैदा होती है। ये रवी ख़त इस्तवा से कुतबैन के इलाके और कुतबैन के इलाकों से ख़त इस्तवा की तरफ बहती है। इस तरह से हमने शक्ल में देखे। उसके बाद देखिए यहाँ पर, क्या आप जानते हैं गर्म और सर्द रवी जिन मकामात पर एकजा हो जाती है और मकामात प्लॉक्टन की अफजाइश के लिए बहुत मुनासिब होते हैं। प्लॉक्टन मछलियों की ग़िज़ा है। यहाँ पे देखिए प्लॉक्टन की किस्म बताई गई है जिसे मछलियाँ बहुत शौक से खाती है। ऐसे मकामात पर मछलियाँ कसीर तादाद में जमा हो जाती हैं। इन्हें खाने के लिए, अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए गर्म मरतूब पानी में उनकी अफजाइश होती है। मछलियों की कसीर तादाद की वजह से इन मकामात पर माहीगिरी का पेशा बड़े पैमाने पर होता है। माहीगिरी यानी मछलियाँ पकड़ना। बहरी रोह के नक्शे शक्ल 5.6 में हमने देखे, तो ये ध्यान में रखें प्लॉक्टन एक किस्म है, उसे मछलियाँ बहुत शौक से खाते हैं। आइए इसके बाद हम मुताला करते हैं शक्ल 5.7 का। जुग्राफिया वजाहत देखेंगे इस शक्ल की। इसे कि दुनिया का सालाना औसत दर्जा हरारत बताया गया है दर्जा सेल्सियस में। ज़मीन की सतह के दर्जा हरारत को मलहूज रखकर नक्शे बनाए जाते हैं। शक्ल 5.7 के नक्शे का मुताला कीजिए। नक्शा हरारत के मसावी खतूत की बुनियाद पर बनाया गया है। ज़मीन की बुलंदी के असरात को नज़रअंदाज करते हुए यकसा हरारत वाले मकामात को जोड़ने से एक खतूत बनते हैं। ये खतूत आमतौर पर अर्जुल बलद के मुतवाज़ी होते। नक्शे में 25 दर्जा हरारत के मसावी खत का मुशाहदा कीजिए। मसावी हरारत का एक खत ख़त इस्तवा के करीबी इलाके को घेरे हुए है। इस मसावी हरारत के खत की सूरत किसी बेजवी दायरे की तरह नज़र आती है, मगर इस बेजवी दायरे की शुमालन जुनूबन वसत बहरे आज़म पर ज़्यादा और बहरे आज़म पर कम होती है। ये मसावत हरारत का खत जनूबी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया और बराज़म के बाद इलाकों से गुजरता है, जैसे कि आपको शक्ल में नज़र आ रहा है। बहरुल काहिल के बहुत कम हिस्से में दर्जा हरारत 25 दर्जे से ज़्यादा है। इसी नक्शे में 0 दर्जे के 2 मसावी हरारत के खतूत दिखाई देंगे। इनका हमको मुशाहिदा करना है। इनमें से जुनूबी निस्फ़ कुर्रे का 0 दर्जे वाला मसावी खत हरारत अक्सर सीधा और अर्जुल बलद के मुतवाज़ी है। इसके बरक्स शुमाली निस्फ़ कुर्रे में इसी दर्जे हरारत का मसावी हरारत का खत काफ़ी टेढ़ा दिखाई देता है। मगरबी बहरुल काहिल पर यह ज़्यादातर सीधा है।
मगर शुमाली बरआज़म अमेरिका में दाखिल होते ही वो शुमाल की जानिब मुड़ जाता है। इसके बाद हम मुशाहिदा कर रहे हरारत तपिश पैमा। तपिश पैमा नापने का ये आला है जो तजुर्बागाह में पाया जाता है। हवा का दर्जा हरारत नापने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हरारत पैमा इस्तेमाल किए जाते हैं। हरारत पैमा में पारा या अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखिए पारा या अल्कोहल दिखाया गया। सबसे पहले नीचे देखिए लिखा हुआ लकड़ी की तख्ती और उसके अंदर जो लाल रंग का है वो पारा या अल्कोहल। फिर हरारत नापने की पट्टी दिया गया है सेंटीमीटर में। फिर उसके अंदर शीशे की खोखली नली, उसमें पारा रखा जाता है और फिर फ़ारेनहाइट F से ज़ाहिर किया जाता है और सेल्सियस का सिंबल यहाँ पे C से ज़ाहिर किया गया है। पारे का नुक्ते इंजमात -39 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अल्कोहल का नुक्ते इंजमात -130 दर्जे सेल्सियस है। ये दोनों माया हरारत की तब्दीली के लिए बड़े हिस्सास होते हैं, इसलिए -30 दर्जे सेल्सियस से मज़बत 55 दर्जे सेल्सियस हरारत तक का फ़र्क इन माए के ज़रिए बआसानी देखा जा सकता है। हरारत को सेल्सियस या फ़ारेनहाइट के दर्जों में नापा जाता है। हरारत पैमा में बताए हुए तरीके के मुताबिक इन्हें डिग्री या सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट के सिंबल से लिखा जाता है।